children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Games We Play. So think and do what you have to do. Look at these pictures and identify these sports game. Which of these are team game and which are played individually? Team game यानी आप टीम में जो खेलते हो, individually मतलब आप सोलो खेलते हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. जैसे दिस गेम इज हॉकी. हॉकी क्या गेम है आपका? टीम गेम है. ठीक है. दिस इज बॉक्सिंग. बॉक्सिंग क्या है? सोलो गेम, इंडिविजुअल गेम. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे. नाउ let us read the topic games and sports. We all love to play games. Some like indoor games and some like outdoor games. Indoor games जो कि घर के अंदर खेलते हैं, outdoor games जो घर से बाहर खेलते हैं. Both indoor and outdoor games are enjoyable and fun activities. Playing games keeps our body and mind healthy and it is a good way to spend leisure time. Why playing game is important? क्योंकि ये हमारी body और mind को healthy रखते हैं और हमारा free time जो होता है, leisure time जो होता है, उसमें हम enjoy भी करते हैं. Fine. So importance of playing game. First is games or sports make our mind fresh. हमारा mind fresh होता है. They keep our body healthy and games inculcate values like team spirit, cooperation, respect and sportsmanship. गेम से बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे अंदर आती हैं. हम टीम स्पिरिट खेलते हैं यानी एक साथ जीतने की भावना होती है, एक साथ मिलकर खेलते हैं. कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं. नाउ टीम एंड इंडिविजुअल गेम्स. तो बच्चे इंडिविजुअल गेम क्या होते हैं? जो हम अकेले खेलते हैं. द प्लेयर प्लेज अलोन अगेंस्ट अनदर प्लेयर, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल गेम. जैसे गोल्फ, चेस, बिलियार्ड, ये क्या है आपके इंडिविजुअल गेम. एंड टीम गेम जो कि हम कैसे खेलते हैं? दो ग्रुप में खेले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम गेम्स. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, ये आपके क्या है? टीम गेम. Now, do you know referees or umpires are people who watch the game to make sure that the rules of the games are not broken. In case of any dispute, the referees or umpire helps to resolve it. पता है ना बच्चे आपको, रेफरी और एम्पायर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो गेम को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि गेम के जो रूल है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं. अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो रेफरी और एम्पायर जो है उसको सोल्व करने में हेल्प करते हैं. Some games such as lawn tennis, badminton and table tennis can be played both individually or as team also, right? Next is games for girls and boys. Some games can be played by both girls and boys together. For example, kho-kho, gilli-danda, tennis, mixed doubles, etc. On the other hand, games such as cricket, football, hockey have separate teams of boys and girls. Okay? इसमें separate team होती है. क्रिकेट की गर्ल्स की टीम अलग होती है, बॉयज़ की टीम अलग होती है. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टीम होती हैं. However, in certain sports like lawn tennis and badminton, both men and women jointly play as a team and they play under the category of mixed double. और कुछ गेम होते हैं जैसे कि लॉन टेनिस, उसमें मैन और वुमेन जो हैं दोनों एक साथ एज अ टीम खेलते हैं, जिसको मिक्स्ड डबल कैटेगरी कहते हैं. दिस यू हैव टू नो. Under Harmanpreet's captaincy, India women have won 54 of the 96 matches while suffering 37 losses. She has a win percentage of 59.23 in women's T20 international. Now, what is team spirit? Team spirit क्या होता है बच्चे? एक टीम की भावना के साथ खेलना, right? So the cooperation and coordination among the team members is called team spirit. Team spirit क्या होता है? एक टीम है, उनके आपस में कितना कॉपरेशन है, क्या कोऑर्डिनेशन है कि हमें विन करना है, उस स्पिरिट को क्या कहते हैं? टीम स्पिरिट. अ टीम नीड्स टू हैव टीम स्पिरिट सो एज टू विन द गेम. अगर कॉपरेशन नहीं होगी, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगी टीम प्लेयर में, तो क्या वो जीत पाएंगे? नो, दे कांट विन द गेम. तो इसीलिए किसी भी गेम को विन करने के लिए टीम स्पिरिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Every player of a team must play for the team and not for herself himself. कोई अपने लिए नहीं खेलता. जब हम टीम में होते हैं तो टीम के लिए खेलते हैं. So team spirit is characterized by cooperation, रिस्पेक्ट एंड शेयरिंग विक्ट्री एंड डिफीट. हार जीत को एक साथ शेयर करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे को कोऑपरेट करना. दिस इज टीम स्पिरिट. नाउ नेशनल स्पोर्ट्स एंड नेशनल टीम.
A team of players that represent a country in a competitive sport is called a national team. कंट्री की एक टीम जो है वो अपने कम्पिटिटिव स्पोर्ट में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, उसको नेशनल टीम कहते हैं. अ नेशनल टीम competes with the team of other countries in various international tournaments. And sports person who are a part of national teams are called national level players. और उनको क्या कहते हैं जो नेशनल टीम के प्लेयर होते हैं? नेशनल लेवल प्लेयर्स. The most popular sports of a country is called its national sport. Here are the national sports of some countries. जैसे कि जापान का क्या है नेशनल स्पोर्ट्स? सुमो रेसलिंग. क्रिकेट किसका है? यूनाइटेड किंगडम. स्पेन का क्या है बच्चे नेशनल स्पोर्ट? बुल फाइटिंग. जर्मनी का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल. कनाडा का आइस हॉकी. साउथ अफ्रीका का रग्बी. नाउ लोकल गेम ऑफ इंडिया. So local games are the games that are played only in certain parts of India. Local game क्या होता है? किसी किसी पार्ट में वो गेम जो है वहाँ के लोकल लोग खेलते हैं. So that is also known as traditional games. These games have been played in India since ancient time. जो पुराने टाइम से खेलते आ रहे हैं. जैसे कि कबड्डी. Kabaddi is a team game. It is known by different names in different regions of our country. It is also known as Hututu in Western India, Hadodo in Eastern India and Chadakudu in South India. It has two teams of 7 players each, right? उसके बाद है खो खो. खो खो जो है that is the second most popular traditional game in India. It has 12 players in each team but only 9 players जो हैं वो टीम में खेलते हैं. Next is Tapu or hopscotch. Tapu or hopscotch, this is a game of balance and ability. It is a number grid on which players hop on both feet, one-legged hop and team play. तो इस तरीके से Tapu खेला जाता है. कंचे, that is marbles, is a game played between 2 to 6 players. The objective is to collect all of your opponent's marbles or be the first player who shoot the most marbles out of the ring. So इस तरीके से marble game खेला जाता है. Next is मलखम. मलखम जो है ये भी एक ट्रेडिशनल गेम है, form of gymnastic, and in this a gymnast usually hangs from a pole and perform various exercise. मलखम में एक खंबा होता है, ठीक है, एक पोल होता है जिसके अराउंड जो है जिम्नास्ट परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज मार्शल आर्ट्स. Martial art is a form of mock combat or a fight that is not for real, which has been developed into a form of art or beauty by the people who practice it for defending oneself or others from attack. इसमें क्या करते हो आप? डिफेंड करते हो, ऐसी फाइट करते हो जो रियल नहीं होती. दिस इज मार्शल आर्ट. कितना ब्यूटीफुली आप उसको अटैक करते हो, कितना ब्यूटीफुली खुद को डिपेंड करते हो और कैसे कैसे मूव्स होते हैं, दैट इज ऑल इन मार्शल आर्ट. मार्शल आर्ट forms also aim to improving a person's fitness and mental strength. Some popular martial arts of India are discussed below. First is wrestling. Wrestling, जिसको कुश्ती या पहलवानी भी कहते हैं, has a long history in India. We get a glimpse of it in our temple carving and ancient painting. जो हमारी पुरानी पेंटिंग है, टेम्पल में कार्व किए गए हैं, वर्क किया गया है, उससे हमें पता लगता है कुश्ती, रेसलिंग जो है बहुत पुराना हमारा स्पोर्ट है. Ancient Hindu epics such as Mahabharat mentions it and the sport is played in a wrestling ground called अखाड़ा. और कहाँ खेला जाता है रेसलिंग? अखाड़ा में. Next is Thang Ta. Thang Ta is the traditional martial art form of Manipur. कहाँ की martial art form है ये? मणिपुर की. And in Manipuri language, Thang means a sword and Ta means a spear, जिसमें sword और spear से fight की जाती है. Thang Ta therefore is a fight using a sword and a spear against one or more opponents. Thang Ta was used with great success by the Manipuri kings to fight against the British. Kalarai Paittu. Kalarai Paittu is a style in Kerala. This is the style of Kerala. Is one of the oldest martial art forms in the world. Legends claim that this art form began with sage Parshuram who possessed mystical power. लोगों का मानना है कि सेज साधु जो परशुराम थे, ऋषि थे, उन्होंने ये शुरू की थी. नेक्स्ट है थोड़ा. थोड़ा इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश. कहाँ की मार्शल आर्ट फॉर्म है? हिमाचल प्रदेश की.
और इसमें क्या होता है, दैट रिलाइज वंस टैलेंट विद द बो एंड और एरो, जिसमें बो और एरो का यूज किया जाता है. इट इज बिलीव दैट इट डेट्स बैक टू द डेज ऑफ द महाभारत व्हेन द पांडवा एंड कौरवास फोर्ट ईच अदर विद बोज एंड एरोज. तो कब से है ये, जब महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरव के बीच में, तब से ये गेम जो है खेला जाता है, ये मार्शल आर्ट जो है पॉपुलर है. Now, do you know some other martial art forms in India are Silambam from Tamil Nadu and Sarit Sarak from Manipur, Lathi Khela from Bengal and Gatka from Punjab, right? Next is changing nature of leisure. लेजर क्या होता है बच्चे, फ्री टाइम, राइट. अर्लियर व्हेन देयर वर नो टेलीविजन, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स, चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले आउटडोर गेम्स सच एज गिल्ली डंडा, कंचे एंड पिट्ठू. अब क्या करते हो आप, सारे दिन क्या करते हो, टीवी देखते हो. जब टीवी नहीं होता था, वीडियो गेम नहीं होते थे, लोग क्या करते थे, आपस में गेम खेलते थे. सो अब हमारी लाइफ का टीवी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, लेकिन हमें टीवी नहीं खेलना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हम लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स आर ऑल्सो अदर वेज इन विच बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट स्पेंड देयर फ्री टाइम. फ्री टाइम में आप क्या कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, इंडोर गेम खेल सकते हो, आउटडोर गेम खेल सकते हो, राइट, जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी होती है. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना, राइट. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. So oxygen burns the food that we eat and gives us energy to work. Whenever we run or play, we start breathing fast. जब भी हम रन करते हैं या प्ले करते हैं तो हमारी फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है. क्यों? Because we need more energy for doing these physical activities. क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ऑक्सीजन जो है वो फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करती है. Now inhalation and exhalation. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन क्या होता है, इनहेल, वी ब्रीद इन एयर. जब हम इनहेल यानी कि अंदर लेना, द प्रोसेस बाय विच वी ब्रीथ इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. और द प्रोसेस जिसमें हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग्स एक्सपेंड्स एंड बिकम बिगर एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आवर लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर स्मॉलर हो जाते हैं. It happens because of the muscles called diaphragm that is present below the lungs. Now when we inhale, the diaphragm contracts. जब हम सांस लेते हैं, हम एयर को अंदर लेते हैं, तो डायफ्राग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है. दिस क्रिएट स्पेस फॉर द लंग्स, ताकि लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड हो सके. और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राग्राम जो है वो रिलैक्स हो जाती है, ताकि लंग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके और एयर को पुश आउट कर सके. आवर बॉडी यूज द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, राइट. नेक्स्ट इज ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड. Our breath can make hot things cold and cold things hot. We blow on a glass of hot milk to make it cold. दूध पीते हैं ना हम, कैसे करते हैं, हम उसको ब्लो करते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, राइट. By doing so we blow the hot air away. हम क्या करते हैं, hot air को आउट करते हैं. This air from our mouth which is comparatively cool take the place of the hot air. Thus cool air cools the milk. और जो हमारे माउथ से हवा आ रही है वो दूध की हवा से क्या है, थोड़ी कूल है, राइट. तो क्या करती है, हॉट एयर को रिप्लेस कर देती है, इसीलिए मिल्क जो है वो कूल हो जाता है. सेकेंड, इन विंटर वी ब्लो ऑन आवर पाम्स टू मेक देम वार्म. सर्दियों में हम क्या करते हैं, जब हमें ठंड लगती है हम अपनी पाम पर ब्लो करते हैं ना. क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बाहर के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा इन विंटर्स, ठीक है. इसलिए जो हमारी बॉडी से, हमारे माउथ से एयर आती है वो वार्म होती है और हमारी पाम को गर्म कर देती है. फाइन. सो बच्चे, दिस इज द चैप्टर. नाउ रिवाइज द चैप्टर. The free time of relaxation is called leisure time. We play both team as well as individual games. The cooperation and coordination among the team members is called team spirit. The games which are played only in certain areas are the local games of that place. Martial art is a form of mock combat or fight that is not for real, which has been developed into a form of art or beauty by people who practice it.
and breathing is the process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Inhalation and exhalation are the two processes involved in breathing. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.